Yeah. Hello friends, how are you? Yeah, this is Tilak Masarani from Web 3.0 India. Our parent company name is Virtualite IT Services Private Limited, and today I am representing ACE, one of our vertical that's provide you the education, or you can say the IT-based training, into which we provide the certified trainings on various other developments, which also includes the latest technologies like metaverse, AI, as well as blockchain. And we duly focus on providing the excellent education in the terms of every field at the moment. So introducing towards my company, the parent company name, as I said, is Virtualite IT Services Private Limited, into which we do have around 4 verticals. The first vertical is Web 3.0 India, where we do provide services like web app development, mobile app development, game development, blockchain development, metaverse development. Apart from that, we do have around 200 plus developers working under one roof at the moment. The Virtualite headquarters are in Ahmedabad, and our second branch is in Indore. We soon would be there in UK, so that even the ACE would be there in UK soon. And apart from that, we would also be introducing lots more technologies as a pioneer into the market. Coming on to the second vertical, that is you can say targeted sales. That's basically a digital marketing vertical where we do provide services like you can say SEO, SMM, PPC for Web 2 as well as Web 3. Now coming on to Web 2 as well as Web 3, that creates confusion in a certain time. See, Web 2 means all the technologies which were going on previously, like you can say the MERN stack, MEAN stack, or normal web development, mobile app development, which was going on since long time. And coming on to the Web 3, that basically covers blockchain, metaverse. That's kind of a new world technologies are there into the market at the moment. Even people are discussing for the Web 4, but we do cover all those at the moment in-house. Apart from that, our third vertical is Ahmedabad Computer Education itself. So this vertical is mainly providing the certified courses for IT development, and apart from that, we also do provide you can say training with the live market. Why with the live market? Because here there is no faculty is coming to train you, but the developer himself who is working in the live market. So whatever you are gaining, whatever training you are doing from here, that is going to be there with the help of live market. So apart from that, moving on to our last vertical, that is Job in Gujarat. That's kind of a placement portal where we do provide the placement services to the pan India. The name is Job in Gujarat, but it provides services for the pan India. So it's not an issue if you come via ACE, and if you are already taking training from here, you would be surely 100% placed from our hand. So that's what we guarantee here. So I hope you got all our introductions. We are working in this industry since last 13 years, and we have pioneered the technology with IoT as well as Web3 recently. Now, as we are planning to move on for today's conversation, that's blockchain. See, if I explain blockchain, see what is blockchain. Like people are discussing on the lots. हम सोच सकते हैं कि डेली बेसिस पे लोग ब्लॉकचेन की बहुत बातें करते हैं. There is lots of discussions going on. There are lots of podcasts. There are lots of trainings. There are lots of videos. तो आप डेली बेसिस पे ब्लॉकचेन का सब देखते हो, और मेनली सब फोकस करते हैं क्रिप्टो करेंसी. अभी ब्लॉकचेन इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी. बिटकॉइन, इथेरियम ये ब्लॉकचेन नहीं है. ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ बैक एंड टेक्नोलॉजी. इसको क्यों बैक एंड टेक्नोलॉजी बोला जाता है, तो मैं उसको एक स्पेसिफाई करूंगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि यू आर ऑलरेडी यूजिंग tables, you are using you can say backend, you are using an admin panel, you are using the servers, you are using the scripting language to control everything towards the current version of whatever you are developing. Like आप जो भी अब तक डेवलप कर रहे हो, या जो भी अब तक आप लोग काम कर रहे हो, या कॉलेज या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, so that comprises of tables, that comprises of relationship models like you can say DBMS, RDBMS, database models as well as relational database models. और उसके अलावा you are also right now working on few of the queries. Like आपकी query अभी क्या होगी कि that is more towards data star this, data star that, data star all. So उससे आपकी queries अभी
होती है. Apart from that, whatever you are working on, that is based on the connectivities. Like आप बैक एंड में कनेक्शन करोगे, वहाँ से डेटा लाओगे, फ्रंट एंड में शो करोगे. So this is how you are currently working into the market. Now let's come back towards the blockchain. What is blockchain? See, basically a blockchain is a kind of a backend which provides the transactional architecture. Why? उसको ट्रांजैक्शनल आर्किटेक्चर क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि नॉर्मली आप जब भी बैकएंड में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो तो उसको बोला जाता है टू डू द टास्क, टू ट्रांसफर द फाइल. बट ब्लॉकचेन में उसी चीज को बोला जाता है टू ट्रांजैक्ट द फाइल. Into the blockchain, it is clearly said that when you do a certain action, that is said to be the transact. So you are transacting the file into the blockchain. Now, why the transacting the file? See, when we discuss about the normal database system or the relational database system, we do transfer the data from one table to other table, and we do one thing there. We do relationship, like you are using primary key, you are using public key, you are using private key to connect all those data together. But into blockchain, that is not possible. So for that, into this, to you can say handle everything, इन सबको संभालने के लिए वहाँ पे API नहीं लगती, queries नहीं लगती, बट वहाँ पे इसको संभालने के लिए यूज होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो भी दिस इज द न्यू टर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू राइट नाउ. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? Smart contract is a base of algorithm comprising of the set of rules which you need to inform or to provide or to transact within the system. तो smart contract क्या होता है? Smart contract is something which is the kind of set of rules so that you can confirm that by this means the data should be flown in other ways. So this is how the blockchain works here. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी डिस्कस ब्लॉकचेन, हम जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होगी जो आपके सामने रैंडमली आएगी. जैसे फर्स्ट तो आ गया अपना चेन इटसेल्फ, दूसरा आएगा अपना हैश की, तीसरा आएगा अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चौथा आएगा अपना लेजर. अभी ये लेजर क्या चीज़ है? अभी लेजर वी जस्ट रिसेंटली डिस्कस्ड अबाउट द लेजर. तो ये लेजर क्या है? व्हाट इज लेजर? Ledger is basically a part of a chain or an algorithm which stores the address of this transaction. अभी a ledger is a banking term. क्यों इसको banking term में बोल रहा हूँ? क्योंकि आप कभी किसी बैंक में गए होंगे, वहाँ पे आप जाओगे तो वो लोग ट्रांसफर नहीं करता. हम लोग बोलते हैं उसको मनी ट्रांसफर, बट दे आर नॉट डूइंग ट्रांसफरिंग ऑफ द मनी. व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ट्रांजैक्टिंग द मनी. तो जब आप मनी ट्रांजैक्ट करते हो तो आपको एक मिलती है पासबुक. तो पासबुक क्या है? बेसिकली पासबुक इज द लेजर विच कम्युनिकेट्स बिटवीन यू एंड द बैंकिंग सर्वर. सो यहाँ पे जो लेजर जो हम डिस्कस करें ब्लॉकचेन में, दैट इज द सेम एज द पासबुक ऑफ द सिस्टम, जिसमें आपका एड्रेस स्टोर होगा, आपका ट्रांजैक्शन स्टोर होगा और आपके एड्रेसेस स्टोर होंगे. नाउ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग सिंस लास्ट लॉन्ग दैट एड्रेसेस. नाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ एड्रेस हियर? सो यहाँ पे एड्रेस होगा एक अल्गोरिथमिक की जो वारकेर से पूरी क्रिएट की जाती है, जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं है. वो यूजुअली 256 की होगी कैरेक्टर्स की, या फिर अगर हाईली सिक्योर्ड है तो 756 या 750 तक जा सकती है. तो ये की क्या है? बेसिकली ये की, ये आपका एक वॉलेट एड्रेस है. इसको एक वॉलेट एड्रेस कहा जाएगा. तो जब तक आप ब्लॉकचेन की कोई भी सिस्टम में हो तब तक ये वॉलेट एड्रेस ही आपकी आईडी है. दैट्स व्हाई इट्स said to be the decentralized system. Once again, this is a new term. हम फिर से एक नया टर्म यहाँ पे लेके आए, that is decentralization. Now coming towards the explanation of two things, centralization and decentralization. अभी centralization क्या है? Centralization is the model which is interconnected with the complete robust system to give you the data and access with ease. That is centralized system. यानी कि centralized system वो है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें पड़ी है, जहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती है और जिनको आप कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हो और उससे पूरा आइडिया ले सकते हो. तो वो होती है एक
सेंट्रलाइज सिस्टम, सेकंड होती है डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो ब्लॉकचेन में यूज की जाती है। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम? सी फॉर एग्जांपल अभी अभी एक केस सामने आया था कि फेसबुक है या गूगल है, उन्होंने अपना डेटा लीक कर दिया। तो उसमें इश्यू क्या हुआ कि डेटा लीक करने की वजह से आपका सारा डेटा कंपनियों में बेच दिया गया। आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल यू नो कि आपको कहीं से भी क्रेडिट कार्ड का फ़ोन आ जाएगा, डेबिट कार्ड का फ़ोन आ जाएगा, राइट? तो उनके पास आपका डेटा कैसे आता है? तो बेसिकली आपका डेटा बेचा जाता है। सो दिस इज हाउ द सेंट्रलाइज सिस्टम इज वर्किंग, क्योंकि आपके रिलेटेड सारे डेटा, सारा चीज़ें एक ही डेटाबेस में पड़ी है। इट इज देयर इनटू द सिंगल सिस्टम एंड फ्रॉम वेयर दे आर ऑलरेडी एक्सेसिंग दैट एंड सेलिंग दैट टू पीपल इनटू द मार्केट। अभी ब्लॉकचेन में दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ब्लॉकचेन में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग रोबस्ट, सेकंड थिंग सिक्योरिटी, थर्ड थिंग डेटा लाइट सॉल्यूशन। अब ये नई टर्म आ गई, हम लोग आगे बात करेंगे। सो डेटा लाइट सॉल्यूशन या फिर आप बोलो कि सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के हम पर्पज अभी बात करें तो रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इट इज लाइक समथिंग दैट इफ यू आर नोन बाय दिस वॉलेट एड्रेस ओनली, तो मैं बोलूँ कि योर आइडेंटिटी इज जस्ट दैट की, नथिंग एल्स। वहाँ पे भी ये 3 कीज आती है। फर्स्ट इज यू कैन से द प्राइवेट की बाय विच यू वुड बी परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शंस, इफ अगर आपका खुद का सिस्टम है तो। सेकंड इज द पब्लिक की, अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो उसके लिए पब्लिक की आएगी। और थर्ड रहेगी सीक्रेट की, टू अनेबल द अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो ये 3 की यूजुअली आती है ब्लॉकचेन में। और बट आपको तो एक वॉलेट एड्रेस ही मैनेज करना है और वो वॉलेट एड्रेस ही आपकी आईडी रहेगी थ्रू आउट एनीथिंग। तो आप समझ सकते हो, अगर ये कोई वॉलेट एड्रेस लेके बैठ गया, उसको कुछ पता नहीं चलेगा आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन इनटू द मार्केट एट द मोमेंट। ओके, नाउ व्हाट ब्लॉकचेन कवर्स? ब्लॉकचेन मेनली कवर्स क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शंस। नाउ मैं एक बात बोलूँ कि अगर आप बैंक में जाते हो, राइट, बैंक में जाके आप बोलते हो कि चलो भाई मेरे पास INR है एंड आई वांट USD, कन्वर्ट इट इनटू USD। तो आप जब USD में इस चीज को कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपको 2 या 3 चार्जेस लगेंगे, राइट? द फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज क्या लगता है? पहला चार्ज लगेगा एक तो ट्रांजैक्शन फीस। हाँ, ट्रांजैक्शन फीस लगती है, दैट इज अराउंड 3% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अलग अलग भी हो सकती है बैंकिंग के हिसाब से। सेकेंड चार्जेस लगते हैं अपने कन्वर्जन फीस। अभी कन्वर्जन फीस क्या है? कन्वर्जन फीस आई थिंक सबको मालूम है। अगर मैं किसी और कंट्री की करेंसी कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक फॉरेक्स होता है उसका, और उस फॉरेक्स के हिसाब से आपको एक मनी बताया जाता है, तो वो होता है। तो सेम वे उसको अगर अवॉइड करना है इन एनी सर्टेन वेज, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज दैट इज अ डिजिटल करेंसी। वो अवेलेबल है ओनली सर्वर पे, वो अवेलेबल है ओनली ऑन योर वॉलेट। सो जब आप डिजिटल करेंसी की बात करते हो, इट इज ईज टू ट्रांसफर इनटू द मल्टी करेंसी मॉडल। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फीस लगती है, दैट इज गैस फीस। ट्रांसफर फीस लग सकती है इन सर्टेन केसेस इफ द अमाउंट इज बिग, राइट? तो बिग अमाउंट के लिए तो आप वैसे भी करंट अकाउंट या ऐसा यूज करते हो, तो इसमें भी सेम चीजें आती है। अभी इसमें 2 टर्म है, देयर आर 2 टर्म्स इनटू द ब्लॉकचेन। फर्स्ट इज द फंजिबल, सेकंड इज नॉन फंजिबल। Why the difference between fungible and non-fungible? See, here as mentioned, there are 2 things. Non-fungible token, that means NFT. Now, this is also like right now, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग टर्म में है, NFT या NFT कलेक्शन या OpenSea या Rarible, वहाँ पे सब जाके आर्ट वर्क परचेज करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और ब्लॉकचेन ने इसको क्यों लाया मार्केट में? बेसिकली blockchain bring NFT into the market because for example there is a biggest painting name as Mona Lisa. Yeah, तो एक मोनालिसा का एक पेंटिंग है, राइट? अभी मैं आपको पूछूं उसकी वैल्यू क्या है, कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज देर इज नो वैल्यूएशन ऑफ दिस सच काइंड ऑफ अ पेंटिंग। ना तो लियोनार्डो डा विंसी को इसका कुछ मिला है,
ना उनको कभी कोई लेवरेज या उसका कुछ मिलेगा, राइट? ना रॉयल्टी मिलेगी या कुछ भी मिलेगा। अभी मैं बोलूँ कि उसी इमेज को मैं एक डिजिटल फॉर्म में कहीं पे एज अ ऑक्शन या एज अ सेलिंग रख देता हूँ, if I keep that particular image into an auction or for the selling purposes or transacting purposes, then how it looks, कैसा लग रहा है? समझ रहे हो कि अगर मैं किसी चीज को मॉर्गेज के लिए रख देता हूं तो मेरे को पैसा मिलेगा, लाइक और यहाँ पे मोस्ट कॉमन थिंग है, सबको चाहिए पैसा, तो इससे मिलेगा आपको पैसा। सो आप अपने आर्टवर्क लेके आते हो, उसकी एक अमाउंट डिसाइड करते हो, उसकी एक ऑनरशिप डिसाइड करते हो, फिर उसको या तो बेचते हो या तो ऑक्शन में रखते हो, और हर बार जितनी बार भी ये इमेज ट्रांसफर होगी आपको उसके पैसे मिलेंगे, यानी आपका आर्टवर्क आपको लाइफ टाइम कमा के देगा। सो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस द टर्म NFT, बट व्हाई नॉन फंजिबल टोकन? नॉन फंजिबल टोकन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप एक एसेट पे वर्क कर रहे हो जो एक फिजिकल एसेट है या रियल टाइम एसेट है। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिखाई जा रही है अभी राउंड में, वो इमेज मेरे लिए एक सिंगल एसेट है, तो इस एसेट की अगर मैं एक वैल्यूएशन सेट कर दूँ आपके लिए तो वो कभी चेंज नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है मार्केट के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, बट इमेज तो कभी चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबल टोकन। सेकेंड चीज आती है फंजिबल टोकन। नाउ अभी आप सोचोगे कि नहीं इसमें तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट ही तो है कि नॉन फंजिबल में कुछ वैल्यूज चेंज नहीं होती, एसेट वही रहता है। हाँ वैसा ही है, बट जब हम बात करते हैं फंजिबल टोकन की तो उसके आते हैं यूज केसेस। देयर आर वेरियस यूज केसेस विद द फंजिबल टोकन्स। द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर यूज केस इज वॉलेट। जैसे मैंने बोला कि आपकी वॉलेट एड्रेस क्रिएट होती है तो वॉलेट तो होगा ही। ये सारी क्रिप्टो करेंसी से लॉक परचेज करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए हमको मेन चीजें चाहिए वॉलेट, राइट? सो फंजिबल टोकन्स कैन बी एक्सेस्ड बाय दोस वॉलेट्स, transferred and sold by this wallet, and this wallet introduces the new technologies into the market, which includes blockchain, which includes the normal technology like React Native for the mobile application, Meanstack, Monstack as a full stack development, and even other technologies you can comprise it with. So ये हमने बात की फंजिबल टोकन्स की। अब तक में अभी क्रिप्टो करेंसीज, अभी क्रिप्टो करेंसी में देयर आर टू टर्म्स इनटू द मार्केट। द फर्स्ट टर्म इज token, second term is coin. Now this is the biggest confusion. कोई भी आके बोल देगा मेरा तो ये coin है, मैंने ये बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि this is coin. Coin is a native currency of any particular smart chain. मैं बहुत emphasize करके बोलता हूँ smart chain, यानी Ethereum is a smart chain, Binance is a smart chain। तो बाइनेंस का टोकन है BEP20, दैट इज द नेम ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो उसका कॉइन है, टोकन नहीं है। और उस कॉइन के ऊपर अगर आप कोई भी करेंसी क्रिएट करते हो तो उसको कहा जाएगा टोकन। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत नाम बहुत फेमस है अभी मार्केट में, शिबा INU या शिब INU। उसको आप देखोगे तो इनिशियली वो फर्स्ट स्टेज में बाइनेंस पे क्रिएट किया गया था, बाइनेंस का टोकन नहीं था। बाइनेंस का टोकन BNB या BEP इटसेल्फ, उसके ऊपर जो क्रिएट किया जाता है वो उसके ऊपर आता है, उसके साथ या वो नहीं होता, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड कॉइन। नाउ देयर इज वन अदर पार्ट विद द ब्लॉकचेन, व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड, व्हाई इट इज, सी ब्लॉकचेन है ना, ये एप्पल है इस जमाने का। एप्पल के डिवाइसेस जो आप प्राइवेसी बोलते हो ना, उस हिसाब से ब्लॉकचेन को कभी माना जाता है। वो क्यों, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हियर देयर इज मेंशन दैट ब्लॉकचेन इज एन इम्यूटेबल प्रोसेस। ये कुछ अलग लग रहा है, ये अतरंगी लग रहा है। सी देयर आर टू टर्म्स इनटू द मार्केट, फर्स्ट इज म्यूटेबिलिटी, सेकंड इज इम्यूटेबिलिटी। अभी म्यूटेबिलिटी क्या है? म्यूटेबिलिटी यानी जो भी आप यूज कर रहे हो, यानी आप अपनी प्रोफाइल में गए, आपने अपना नाम चेंज कर दिया, इमेज चेंज कर दिया, या कुछ फोन नंबर चेंज कर दिया, उसको एडिट करके जाने दिया, दैट इज म्यूटेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। जो आप चेंज कर पाओ या जो आप किसी को रोक पाओ, किसी ट्रांजैक्शन किसी प्रोसेस को रोक पाओ,
बीच में से, उसको म्यूटेबिलिटी कहते हैं। कमिंग टू द इम्यूटेबिलिटी पार्ट, तो इम्यूटेबिलिटी टोटली ऑपोजिट है और ब्लॉकचेन फॉलोज इम्यूटेबिलिटी प्रोसेस। व्हाई इम्यूटेबिलिटी प्रोसेस? इनटू द ब्लॉकचेन you don't need or you cannot hold or block any sort of transaction. अगर आपने एक बार ट्रांजेक्शन कर दिया, वो सेव हो गए, बात खत्म। there is no possibilities you can change it, you can change the course, you can do anything. So now you understand why I said Apple and comparing it with the blockchain. That becomes a private, that becomes the stronghold that enables you to save your data forever. उसके अलावा ब्लॉकचेन में 3 तरह की ब्लॉकचेन्स है मार्केट पे। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स। द फर्स्ट ब्लॉकचेन इज पब्लिक चेन इटसेल्फ, जो पब्लिक यूज़ करते हैं या नॉर्मली सारे यूज़ करते हैं, वो एक मेंशन किया है। सेकंड इज प्राइवेट चेन, यानी जो डिटेल्स प्राइवेट या बैकएंड के लिए है, सेकंड इज प्राइवेट चेन। थर्ड इज कंसोर्शियम चेन, उस पे आते हैं। ये 3 चीज़ क्या है, व्हाट आर दोस 3 थिंग्स और व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन? सी, ब्लॉकचेन इज समथिंग विच इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। अगर आपको खुद का कुछ क्रिएट करना है, आप यू कैन इवन क्रिएट योर ओन लैंग्वेज टू क्रिएट ए ब्लॉकचेन, बिकॉज मेनली ब्लॉकचेन इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ C and C++ एंड Golang। सो आप ये भी समझ सकते हो कि करंटली आप जो पढ़ रहे हो ना, उससे ब्लॉकचेन बनी हुई है। सो ऐसा नहीं है कि अब तक आप जो पढ़ रहे थे या आप जो अभी भी पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट रिलेशनल टू एनीथिंग, बट दिस इज हाईली रिलेशन। C++ अगर आपको नॉर्मली आती है, यू कैन क्रिएट द ब्लॉकचेन। आपको अगर Golang आती है, यू कैन क्रिएट द ब्लॉकचेन। दिस इज द बेस व्हाट यू आर स्टडीइंग एट द मोमेंट। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, द फर्स्ट थिंग, द पब्लिक चेन। नाउ पब्लिक चेन क्या है? जैसे मैंने बोला कि ब्लॉकचेन पूरा प्राइवेट है, सिक्योर्ड है, डेटा नहीं देता, डेटा शो नहीं करता, बट ऐसी चीज तो नहीं है कि सारे डेटा शो नहीं करने। तो ब्लॉकचेन हमको एक अलाउ करता है कि काइंड ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे जितना डेटा रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा शो करे, यानी जो भी डेटा हमारे लिए वायबल है, फिजिबल है, वही डेटा हमको शो करना है। तो वो आता है पब्लिक चेन में। मैं जैसे बोलूँ कि इथेरियम, बाइनांस या फिर कोई नॉर्मल सी सप्लाई चेन ले लो, जहाँ पे यूज़र को कंपनी का डिटेल दिखेगा, बाई सेल कर पाएगा चीज़ें, ओनरशिप दिखेगी, तो वो सब होती है पब्लिक चेन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेट चेन। अभी प्राइवेट चेन, तो प्राइवेट चेन में हम क्या करते हैं? बेसिकली प्राइवेट चेन होती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट बॉडी ने कुछ चाहा कि मुझे कुछ क्रिएट करना है ब्लॉकचेन पे, तो वो होता है प्राइवेट चेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी केम अक्रॉस द टर्म नेम्ड आभा। आभा सबको मालूम ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, दैट इज आयुष्मान भारत कार्ड, जो स्पेशली मेडिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए यूज़ किया जाता है इंडिया में। रिसेंटली उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो ये आभा सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन बेस्ड है। जान के अच्छा लगेगा आपको कि वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन बेस्ड है, और यहाँ भी आपका वॉलेट एड्रेस ही क्रिएट होता है। कैसे? हाउ? लाइक जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, जब ये सब लिखते हो, तो सबसे पहले आपको एक कार्ड नंबर दिया जाता है, और ये कार्ड नंबर आप कहीं भी किसी भी मेडिकल सिस्टम में एंटर करोगे ना, तो थ्रू आउट आपका डिटेल्स वहीं से मिल जाएगा। तो वो जो कार्ड नंबर आपको दिया जाता है, दैट्स योर वॉलेट एड्रेस एंड दैट्स योर आइडेंटिटी ऑफ ब्लॉकचेन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइवेट ब्लॉकचेन। फिर अपना थर्ड आता है, थर्ड इज कंसोर्शियम चेन। ना अभी ये कंसोर्शियम चेन क्या है? प्राइवेट पब्लिक तो समझ गए, कंसोर्शियम चेन क्या है? कंसोर्शियम चेन वो है जो स्पेशली क्रिएट की जाती है IoT लेवल या फिर इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर बेस्ड लेवल के लिए। इसमें डायरेक्टली ब्लॉकचेन आपको क्रिएट करनी है खुद की फ्रॉम ग्राउंड जीरो लेवल, फिर आपको उसको एक डेवलप करना है फॉर पर्टिकुलरली सॉल्यूशन, और उस हिसाब से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, इकोसिस्टम काम करेगा। तो इस इकोसिस्टम के अंदर आप अपना ही एक लेजर क्रिएट कर सकते हो,
अपना ही आप बोल सकते हैं कि आप अपना ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो और आपको किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कुछ जो भी बनाना चाहते हो खुद का बनाओ। बट इसमें भी आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, पब्लिक चेन एंड प्राइवेट चेन। पब्लिक डेटा क्या होगा, प्राइवेट डेटा क्या होगा, वरना ये दुनिया में एक्सेप्ट नहीं होगा। सो दिस आर द मेनली फोकस्ड फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। अभी बात करते हैं टेक्निकल लेवल पे, क्योंकि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ट्रेनिंग पर्पज से, तो टेक्निकल लेवल पे बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन में हम क्यों जाए, व्हाई आवर फ्यूचर इज देयर इनटू द ब्लॉकचेन, क्यों जाना चाहिए, राइट। फर्स्ट थिंग, ब्लॉकचेन इज इन मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट। जैसे मैंने बोला, ब्लॉकचेन इज नॉट अ सिंपल टर्म एज you can say just for the cryptocurrency. Cryptocurrency is a part of the blockchain, is a body of the blockchain, but it's not a blockchain. See, blockchain जैसे for example अब तक आपने डेटाबेसेस कौन कौन से आए होंगे आपके अंडर में। एक होगा मोनोलिथिक डेटाबेस, एक होगा माइक्रो सर्विसेज डेटाबेस। अभी मोनोलिथिक डेटाबेस की बात करें तो मोनोलिथिक डेटाबेस यानी अभी जो आप डेटाबेस टेबल या उससे जो क्रिएट करते हो उसको बोलते हैं मोनोलिथिक डेटाबेस और वेब टू डेटाबेस, जहाँ पे आप चीज़ें एक साथ पूरा रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करके दे देते हैं। दूसरा होता है माइक्रो सर्विसेज डेटाबेस। और एक चीज़ भूल गया, मोनोलिथिक डेटाबेस इज डेटा हैवी सॉल्यूशन। अब समझ में है, वो डेटा लाइट डेटा हैवी में बोल रहा था। क्यों इसको डेटा हैवी सॉल्यूशन बोला जाता है? डेटा हैवी सॉल्यूशन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके टेबल्स कंप्राइज करने हैं, उसको एक सर्वर पे चढ़ाना है, वहाँ से उस डेटा को लेना है, उसकी एपीआई है, उसकी एसडीके है, उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी का मॉड्यूल है और फिर आता है फ्रंट एंड। तो इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ में डालते हो, उसके ऊपर यूज़र का फुटफॉल्स। सो कंप्राइजिंग एवरीथिंग इनटू वन थिंग दैट क्रिएट्स डेटा हैवी सॉल्यूशन, and that creates the issues, spacing issues, cloud issues, server issues, and even the security issues in certain terms, because सब चीज़ें की जगह पे है। Second thing comes to the microservices architecture. Now what is microservices architecture? अभी मैं बोलूँ कि इन सारी चीज़ को मैं डिवाइड कर दूँ, अलग अलग क्यूब्स, अलग अलग डोकर्स, अलग अलग कंटेनर्स में। नया आया ना, कुछ सुनने में याद आया होगा, राइट। सो Kubernetes, that is one of the hot topics into the market, which IBM is still learning and providing us the libraries on, जो create करता है clusters. Now अभी ये cluster क्या है? For example, I am in Ahmedabad at the moment. You must be somewhere in the world. तो मैं बोलूँ कि Ahmedabad is one of the cluster into which all the data of Ahmedabad would be there here into the system. तो अभी अगर कोई अहमदाबाद से रिक्वेस्ट आती है ना, तो मुझे वही क्लस्टर टच करना है। और अगर कोई सिस्टम आपकी कंट्री में है तो उसी कंट्री के सिस्टम को टच करना है। तो आप समझ सकते हो कितना डेटा लाइट हो गया। मीन्स हाउ फास्ट इट कैन वर्क विथ यू। मीन्स यू कैन जस्ट एंटर अहमदाबाद एंड इट विल जस्ट क्रिएट टच द क्लस्टर ऑफ अहमदाबाद एंड ब्रिंग द डेटाबेस टू यू। सो ये होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। उसमें दो चीजें फेमस है, फर्स्ट इज डोकर कंटेनर सिस्टम एंड सेकंड इज कुबरनेट्स। Now third system has came into existence with the microservices, that is said to be blockchain. So blockchain is also a microservice architecture with a distributed system of database with nodes as well as ledgers. Understood? So अब ये क्यों डेटा लाइट सिस्टम है अभी आपको समझ में आ गया? So this is how it is working. Now blockchain के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है? Let's study about that today. Into blockchain, there are three kind of things which we discuss here: smart contract, other development, and previous stuff. Like smart contract, we use two mainly technologies into the market. First is Solidity, second is Rust. Apart from that, there are other languages too, like Haskell, Cosmos, Cardano. Everything is there into the market, which has the various technologies for the smart contract development. But the base of those technologies, or the mother of those technologies, is Python, right? So base of this technology is Python, right? And other technologies which are used with there is React, Golang, C++, C। हाँ, सुन के कुछ अच्छा लगा नहीं? वो C वाली ग्रीन स्क्रीन पे क्या होता होगा अब तक पता नहीं चला ना?
तो सी की ग्रीन स्क्रीन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं कोई कोई बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के, राइट। तो ये सारी चीज़ें एज अ टेक्नोलॉजी आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको खुद की ब्लॉकचेन क्रिएट करनी है तो उसके लिए यूज होता है C++, गोलैंग, या फिर उन दोनों का मिक्स करके आप कोई भी लैंग्वेज बना लो, तो उससे बनती है ब्लॉकचेन्स। और उसके अलावा यहाँ पे ये पूरी चीजें होती है हाइब्रिड बेस्ड सिस्टम। कैसे हाइब्रिड बेस्ड सिस्टम? क्योंकि देखो फ्रंट एंड या फिर एडमिन पैनल वो सब तो एक ही होता है बरसों से, तो फ्रंट एंड तो वही बनेगा। तो फ्रंट एंड के लिए अभी क्या पॉपुलर चीजें हैं? लारवेल, React.js, Node.js, MongoDB, ये तो डेटाबेस का पार्ट हो गया वैसे, एंड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दैट द फुल स्टैक डेवलपमेंट इज मोर प्रिफरेबल। फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आएगा अपना React यानी मॉन स्टैक, दूसरा आएगा एंगुलर यानी मीन स्टैक, और तीसरा आएगा द मोस्ट फेमस इज हाइब्रिड सिस्टम फॉर द मोबाइल एप्लीकेशंस दैट ब्रिंग्स फ्लटर। अभी फ्लटर इज अ 3-वे आर्किटेक्चर। फ्लटर में आप 3 चीजें कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। और सेम वे गोज विद द रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। सो ये सारी चीजें होगी ब्लॉकचेन को पढ़ने के लिए। नाउ अब तक तो बहुत सारी बातें हो गई ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग। मैंने आपको ये भी बोल दिया कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज नहीं आती है, क्या क्या होता है। और एक फन फैक्ट है ब्लॉकचेन के बारे में, मैं एंड करना चाहूँगा ब्लॉकचेन का यहाँ से। फन फैक्ट ये है कि ब्लॉकचेन इज इनटू आवर सिस्टम बिफोर 2000। सुन के कुछ शॉक लगा ना? ब्लॉकचेन वी आर यूजिंग बिफोर 2000s। 2009 से इट इज़ क्वाइट पॉपुलर, and right now it is highly in demand in each and every solutions, whether it is healthcare, whether it is fintech, or whether it is a normal development solution, right? Okay, तो अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग था, ब्लॉकचेन के लिए था, और ब्लॉकचेन की ही बातें कर रहे थे। अभी नेक्स्ट थिंग हम जहाँ पे आ रहे हैं, नेक्स्ट थिंग वी आर प्लानिंग टू मूव ऑन विथ, सेकंड इज AI। या कुछ नया है नहीं, बहुत मस्त है, मार्केट में बहुत अच्छा लगेगा AI। अभी AI में आप लोग क्या सोच रहे हो? AI क्या होता है बेसिकली? कुछ जो चीज़ फटाफट हो जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ झट से हो गया, दैट इज AI। दैट्स व्हाट पीपल आर थिंकिंग राइट नाउ इनटू द वर्ल्ड कि AI क्या है? AI इज बेसिकली माई कंपेनियन। नाउ ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। AI is not you, AI is not a replacement of you, AI is your companion। ये अभी बहुत लोगों को बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि AI है ना, वो आपका पार्टनर है, वो आपकी चीज़ें आसान करने के लिए बनाया है, वो आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया। दूसरी चीज़, AI is because of you, you are not because of AI। ये चीज़ भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है एक इंसान के द्वारा, और हैंडल भी हो रही है इंसान के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं है कि जो हैंडल आपको करेगी या आपको डिपेंडेंट कर देगी। कभी भी इस चीज़ पे डिपेंडेंट आप नहीं होगे। और अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको एक शॉकिंग चीज़ मिलेगी कि AI इज देयर इन द मार्केट सिंस 1986। उससे भी पहले से आ रही है। अब मैं उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे दूँ। आर यू यूजिंग Gmail? सिंस लॉन्ग टाइम 2000 से, उससे पहले से Gmail सब लोग यूज़ कर रहे हो। तो Gmail में आप जब मेल टाइप करते हो ना, तो उस जमाने से आ रहा है, वो नेक्स्ट सजेशन दे देता है आपको। जैसे ही आप उसमें कुछ टाइप करोगे ना, वो सेंटेंस आपको कंप्लीट करने के लिए सजेशन दे देगा कि इससे सेंटेंस कंप्लीट होगा। नाउ दैट इज AI। वो सजेशन जो दिया गया है दैट इज AI, एंड दैट वर्क्स ऑन द NLP मॉडल। समझ रहे हो? तो AI इज देयर इनटू द मार्केट सिंस लॉन्ग। नाउ AI में क्या क्या आता है? AI बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3 मेजर थिंग्स। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग, सेकंड इज डीप लर्निंग, थर्ड इज डेटा साइंस। नाउ मशीन लर्निंग, वैसे मशीन लर्निंग में क्या आता है? मशीन लर्निंग इज बेसिकली आपने कुछ लिखा, उसको डिटेक्ट किया, उसको पकड़ लिया और उसको रिस्पॉन्स किया, दैट कम्स
फर्स्ट थिंग इज मशीन लर्निंग। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आप जब गेम खेलते हो, यू आर प्लेइंग गेम्स, लॉट्स ऑफ पीपल आर प्लेइंग गेम्स ऑन टू द मोबाइल, पबजी ले लो या फिर बैटल ग्राउंड ले लो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोबाइल एक वर्जन कम है या एक वर्जन अप है, तो उसके हिसाब से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। या फिर कोई मोबाइल या कोई किसी लैपटॉप या पीसी में अगर मैं गेम डालूं और वो चिपक रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे? व्हाट इज योर ऑप्शन विथ यू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन इज ऑटो एडजस्टमेंट, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट और या सिस्टम रिकमेंडेशंस में आता है। सेकंड आता है आप उसको लो ग्राफिक्स मोड पे ले जाओ। समझ रहे हो? लो ग्राफिक्स मोड आप कर रहे हो तो वो सजेशन जो आपको मिला या फिर ऑटो एडजस्टमेंट हो रहा है, वो क्या है? दैट इज बेसिकली एआई। उसने क्या किया? वो सिस्टम में गया, वो एक एल्गोरिदम लिखा गया था। एआई इज बेसिकली एन एल्गोरिदम एंड द सेट ऑफ कीवर्ड्स। तो सो सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड एन एल्गोरिदम मिक्स टुगेदर एंड क्रिएट्स एन एआई। और उसका एक ट्रेनिंग मॉडल होता है, उसको हम ट्रेन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें वो कैसे होता है। सो एआई ने क्या किया यहाँ पे? एआई आता है अंदर सिस्टम में, चेक करता है कि भाई ये गेम हम लोग रन करने गए, अरे बाप रे यार, ये सिस्टम तो बहुत सारी प्रोसेस लेगा, बहुत सारे फ्रेम्स लेगा और बहुत सारा इसके अंदर हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। तो अभी ये क्या करेगा कि बेसिकली आई नीड टू रन दिस ऑन दिस डिवाइस, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज विद इन दिस प्रोग्राम दैट आई कैन रन इट ऑन द डिवाइस। सो फॉर दैट इट जस्ट कैलकुलेट्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज द प्रोसेस, second is the frame, third is the hardware. First it will cover the latency of the process, so process latency वो reduce करेगा। second frame rate latency, आपका 120 हर्ट्ज पे सही नहीं चल रहा, 60 हर्ट्ज करके दे देगा, that is technical term। and third comes hardware processing, मेरा हार्डवेयर कौन सी चिपसेट का है और वो कहाँ तक कवर कर सकता है, वो AI आपको करके देगा। So this is how the AI is working with the help of machine learning. Now moving towards to the next part, deep learning. Now see, जैसे हमने डिस्कस किया मशीन लर्निंग, वैसे आता है डीप लर्निंग। Now ये डीप लर्निंग क्या है भाई? मशीन लर्निंग तो अभी भी समझ गए कि चलो वो प्रोसेस स्टडी करता है, हार्डवेयर स्टडी करता है या कुछ और स्टडी करता है और उसके हिसाब से आपको पूरा एक सजेशन देता है या अपने हिसाब से चेंजेस करके आपको दे देता है, या इट विल चेंज इटसेल्फ एंड गिव यू एन सॉल्यूशन। सो वो मशीन लर्निंग हो गया था। नाउ कमिंग ऑन टू द डीप लर्निंग पार्ट, व्हाट डीप लर्निंग इज। नाउ एज आई सेड दैट इट अंडरस्टूड वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट और वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो ये कहाँ से आया? ये आया उस कीवर्ड से। जैसे मैंने बोला कि उसको प्रोसेस में कम लगा, उसको फ्रेम रेट में कम लगा, वो कैसे हुआ? क्योंकि उसको कीवर्ड ग्रैब हो गया कि लेटेंसी, लेटेंसी इज द कीवर्ड, प्रोसेस लेटेंसी इज द कीवर्ड फॉर मी। तो प्रोसेस लेटेंसी मुझे देखनी है, फ्रेम रेट लेटेंसी, तो फ्रेम रेट लेटेंसी इज द कीवर्ड फॉर मी, राइट। तो एआई को हम लोग ट्रेन करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कीवर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर है जहां से ग्रैब करता है कि यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन देना है, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। उसके बाद कमिंग टू द डेटा साइंस। अब ये टर्म तो आप लोगों के एज ए स्टूडेंट बहुत बार आई होगी, कई बार आती होगी। डेटा साइंस इज समथिंग दैट इज कमिंग एंड गोइंग टू एंड फ्रो सिंस लॉन्ग टाइम। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज समथिंग विच यू मैनेज in the terms of information, in the terms of instruction, in the terms of confirmation. Information and confirmation and instruction comprises data science. तो मैं बोलूँ कि डेटा साइंस, यू आर वर्किंग इन डेटा साइंस सिंस लॉन्ग टाइम। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटाबेस मैनेज करते हो, डिटेल्स मैनेज करते हो, फॉर्म्स मैनेज करते हो, तो वो कहाँ से होता है? वो डेटा साइंस ही है एक तरह का। समझ रहे हो? तो आप लोग ऑलरेडी डेटा साइंस पे वर्क कर रहे थे, बट दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डेटा साइंस। जैसे मैंने बोला कि मैं एक आर्किटेक्चर आपको क्रिएट करके दूँ, एक एल्गोरिदम क्रिएट करके दूँ, जिसके हिसाब से आप अपना पूरा सिस्टम रन कर सकते हो, जो आपको एक हेल्प करेगा, जो आपको एक बढ़ावा देगा, जो अपने आप ही कुछ काम कर लेगा। तो वो सब होगा डेटा साइंस और इंफॉर्मेशन लेवल पे, राइट।
तो डेटा साइंस ये करता है। तो फर्स्ट लेयर हमारे लिए आता है नॉर्मल अपना मॉडल, फर्स्ट लेयर और द पब्लिक लेयर। सेकंड आता है मशीन लर्निंग लेयर, थर्ड आता है डीप लर्निंग लेयर, और लास्ट में आएगा डेटा साइंस लेयर यानी डेटा मॉडल लेयर। सो दिस इज हाउ AI इज वर्किंग। नाउ देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ AI यूज्ड इनटू द मार्केट। अब आप बोलो कि ये क्या? हाँ, only two types of AI right now used into the market. The first AI is used in the terms of cooperative AI. Cooperative AI यानी ChatGPT ले लो, या फिर कोई भी chat based AI ले लो, या फिर कोई भी डेटा बेस्ड AI ले लो कि जहाँ पे आपको सारे टर्म्स और वो सभी मिलेंगे, तो उसको बोला जाता है AI और द NLP AI। और सेकंड आएगा अपना जनरेटिव AI। अब ये जनरेटिव है, मज़ा आया ना सुन के। अभी आपने देखा होगा कि राइट नाउ वो देयर वाज एन इवेंट नेम्ड अयोध्या राम मंदिर टेम्पल, राइट? देन देयर वर लॉट्स ऑफ इमेजेस ऑफ लॉर्ड राम, और लॉट्स ऑफ इमेजेस राम भगवान की बहुत सारी इमेजेस जनरेट हुई थी, एनिमेटेड, नॉन एनिमेटेड, स्मॉल वे, बिग वे, और वो पूरी 3D लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, नहीं? जहाँ पे आप लोग अपना नाम चेंज कर सकते थे, उस पीछे अपना टी-शर्ट पे नाम लिख सकते थे, वो बहुत चला मार्केट में ट्रेंड। तो वो क्या था? वो AI बेस्ड इमेज थी। नाउ जनरेटिव AI क्या है? अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर नहीं है, आप कहीं पे फंस रहे हो, आपको कुछ बनाना है, तो आप क्या करते हो? आप AI के प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस डालो, और उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे आपको एक इमेज मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड जनरेटिव AI। और ये जनरेटिव AI का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? अभी जनरेटिव AI का यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, मार्केटिंग के लिए, या बहुत सारे पर्पजेस के लिए जनरेटिव AI का यूज़ हो रहा है। अभी ये कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल कि ये फ्लोरिंग है, मेरे आसपास ये सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, या फ्लोरिंग है, या ये मेटावर्स है जहाँ पे आप लोग अभी खड़े हो, या जहाँ पे मुझे देख रहे हो मेटावर्स पे, उसकी एक फ्लोरिंग दिख रही है, उसके अराउंड सारी चीज़ें आपको बनाई हुई दिख रही है। मैं बोलूँ कि मैं उसको एक कैमरे के स्कैन्स के पूरा डेवलप कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस आई वांट टू बिल्ड। तो ये आप समझ रहे हो किस लेवल की बात कर रहा हूं मैं? दैट इज कॉल्ड जनरेटिव AI। और उसके बेस्ट एग्जांपल मार्केट में है, अगर आप चैट बेस्ड AI बोलो तो ChatGPT, और नॉन चैट बेस्ड या जनरेटिव AI बोलो तो DALL-E, राइट? सो these are the two types of AI right now famous into the market. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो भी हम लोग आते हैं, या किससे बनता है वो भी हम लोग बात करते हैं। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी क्रिएटेड विथ एनी टेक्नोलॉजी, आई वुड से। वो पाइथन आप ले लो, .NET ले लो, या रिएक्ट का ले लो, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप AI जनरेट कर सकते हो, किसी भी बेस टेक्नोलॉजी से AI में आगे बढ़ सकते हो। सो इवन द बेस टेक्नोलॉजीज लाइक C++ आप AI के साथ क्रिएट कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फेज ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। द लास्ट फेज ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इज मेटावर्स। हाँ, इसी में तो हो, राइट? आप अभी मेटावर्स में ही खड़े हो, यू आर इनटू ए मेटावर्स। दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। ये तो एक एरिया है हमारे मेटावर्स का। यहाँ पे तो पूरा फैंटेसी वर्ल्ड बनाएंगे हम इसका। अभी आप कोर्स भी एंजॉय कर सकते हो हर एक मेटावर्स में जाके। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन की बात करने आए, या AI की बात करने आए, या मेटावर्स की बात करने आए, राइट? तो मेटावर्स है क्या? बेसिकली मेटावर्स होता है वर्चुअल स्पेस, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे आप दुनिया के किसी भी कोने से एक जगह पे आके कुछ साथ में कर पाओ, तो उसको बोला जाता है मेटावर्स। नाउ अभी मेटा एंड वर्स इज टू डिफरेंट थिंग्स। मेटा यानी मल्टी लेवल, एंड वर्स यानी दिस कंप्रेशन ऑफ मल्टी लेवल इनटू ए सिंगल टर्म। मजा आया? ये नहीं आया होगा आज तक आपने, राइट? ये सुना भी नहीं होगा, राइट? सो मेटा मीन्स मोर देन वन, यानी मोर देन वन experience comprised into a single world experience, that is called verse. So metaverse, that's why it's a metaverse.
अभी हम बात करेंगे मेटावर्स कौन कौन से चीज़ें कवर अप करता है। मेटावर्स आपको दो तरह की चीज़ें, मेनली तीन तरह की चीज़ें सॉरी देता है। फर्स्ट, इट विल गिव यू द एक्सपीरियंस फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। हाँ, मेटावर्स एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत यूज हो रहा है। सेकंड, इट गिव्स यू द फैंटेसी और एंटरटेनमेंट पर्पस, जहां पे आप पूरी अपनी दुनिया क्रिएट करके घूम सकते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, मजे करो। यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन सी मूवीज, यू कैन फैंटेसाइज एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट which is used right now is gaming purposes. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू कैन सी एन ऑपरेशनल वर्स या ऑपरेशन वर्स जिसका नाम दिया गया, soon it would be there into the market because recently they have started advertising it. ये क्या है बेसिकली? ऑपरेशनल वर्स यानी फॉर एग्जांपल आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हो या कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, वो तुरंत ही आता है, उसको बोला जाएगा भाई ये मेंढक है, काट दे भाई। यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, नो वन कैन डू दैट बिकॉज दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आते ही आप किसी चीज को काट के डाइसेक्ट करके नहीं देख सकते। तो मैं उसके बदले बोलूं कि मैं आपको एक 3D एनवायरनमेंट दे रहा हूं या ऐसा एक एक्सपीरियंस सेंटर दे रहा हूं जिसमें आप खड़े हो, ऐसा कुछ मैं आपको दे रहा हूं और वहां पे जाके आप वो मेंढक काट सकते हो या वहां पे जाके आप कोई भी डाइसेक्शन कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो फिजिकली विथ एक्सपीरियंस, कंप्लीट एक्सपीरियंस। तो एक तो वो एनिमेशनल लेवल है, तो आपको गिन नहीं आएगी। यू वॉन्ट बी फेसिंग एनी नोशिया ड्यू टू दिस एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म इट इन बेटर वे व्हेन यू गो इनटू द रियल वर्ल्ड। तो ये होता है वन ऑफ द एजुकेशनल पर्पस ऑफ द मेटावर्स। सेकंड क्या होता है? फैंटेसी वर्ल्ड, यानी जैसे अभी ये ले लो, ये भी एक एजुकेशन है बट इसमें एक फैंटेसी भी है। आप कहीं भी घूम पा रहे हो, कोई भी सेक्शंस देख पा रहे हो, किसी भी सेक्शन में कुछ भी चीजें इंटरेक्ट कर पा रहे हो या आप अपने मजे से घूम रहे हो, दैट इज कॉल्ड फैंटेसी वर्ल्ड। या फिर इट इज नॉट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड, इट इज मोर देन समथिंग, राइट? सो दैट इज फैंटेसी बेस्ड मेटावर्स। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इज गेमिंग मेटावर्स। अब फैंटेसी मेटावर्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सॉरी मैं भूल गया। फैंटेसी मेटावर्स का बेस्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलैंड सैंडबॉक्स। ये आप मेटावर्स कभी भी चेकआउट कर सकते हो, राइट? वहां पे जाके देखो, एंजॉय करो। द लास्ट मेटावर्स इज सेड टू बी, यू कैन से गेमिंग मेटावर्स, यानी स्पेशली गेम के लिए ही यूज किया या क्रिएट किया गया मेटावर्स। सो लास्ट मेटावर्स है वो, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रोबोलॉक्स, जहाँ पे मल्टीपल गेम्स मिलेंगे, मल्टीपल सेक्शंस मिलेंगे, मल्टीपल एरेनाज मिलेंगे। एरेना में एंटर हो, गेम खेलो, पॉइंट्स लो और इवन यू कैन ऑन विद दिस। सो अभी ये सारी चीजें हो गई, मेटावर्स क्या है, कैसा है, क्या क्या आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द मेटावर्स, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। The technical part of the metaverse is basically comprised into various engines. उसमें से दो इंजन बहुत फेमस है। फर्स्ट इंजन इज यूनिटी, दैट इज बेस्ड ऑन C# और C। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो इसके रिलेटेड ही है। एंड सेकंड इज कौन सा है? अनरियल इंजन। अभी वो C++ पे बनाया गया है। एंड अनरियल इंजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, you can say, the engine where you can develop such experiences. इसके अलावा डिजाइनिंग के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे ब्लेंडर है, माया है, ऑटोडेस्क है, 3D मैक्स है। तो ये सारी चीजें एक साथ मिला के एक मेटावर्स बना के आपको देती है। और ये सब चीजें आप ऑलरेडी इन सर्टेन वेज पढ़ रहे हो यहाँ पे, कॉलेजेस पे, सब जगह पे। और अदर कोर्सेज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे जैसे एक्सटर्नल ब्रांचेज है जहाँ पे आके ये सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो और आप ये न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज को इजीली पढ़ सकते हो। सो मैं कहना चाहूँगा कि अब तक आपने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। और इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि नेवर फॉरगेट योर बेस। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, वो बेस ही है जो आपको आगे हेल्प करेगा। अगर वो आता है तो ये न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। So join with us, join with ACE, understand the new world technologies, study the new world technologies with live market, and
let's upgrade ourselves. Thank you.